शुरू कर दूं? Good afternoon, my dear friends. In my left, H.C. Nisa, he is the spokesperson BJP Arunachal Pradesh, and in my right, he is Tartara, Vice President BJP Arunachal Pradesh. Today, we have called all media friends for press briefing just to highlight the budget 2024-25 and overview of the union government budget. So, good afternoon all media friends for coming and capturing the overview of budget 2024-25. In the meantime, after completing budget, union budget, I would also like to throw lights about the state budget in nutshell. As you know, this year's budget, interim budget was placed in the month of February, and finally a few days back, final budget has been prepared. And in the budget 2024 and 25, the union government has particularly focused on employment, skilling, MSME, and for middle class people. And there are so many packages in the budget, and opportunities for 4.1 crore youth over a period of 5 years has been provided. With that, I would like to highlight some of the budget of 2024 and 25. One important aspect is the youth and employment. Jan ko milega rozgar. The government has emphasized on giving rozgar, means employment opportunities to the youth, unemployed youths of the nation. That I would like to throw lights. 1 month wage for the new entrants up to rupees 15,000 entry installment, benefiting 2.1 lakh youth. F4 incentives for manufacturing to both employers, benefiting 30 lakhs youth. EF4 contributions of employers to be reimbursed up to rupees 3,000 for 2 years for new hires, creating 50 lakhs jobs. 20 lakhs youths to be skilled over 5 years. 1,000 ITIs to be upgraded. Internship with 5,000 month stipends. Rupees 6,000 one-time assistance for 1 crore youth in the next 5 years. As I have told, this year the government has emphasized on skilling. So for skilling, 20 lakhs youth will be given training so that they can earn for their livelihood. 10 lakhs higher education loans with 3% interest has also been prescribed. 7.5 lakhs model schools loan schemes, 25,000 per year. 1.48 lakhs crores for youth employment schemes. That effort, MSME से आत्मनिर्भर बनता भारत, मीनिंग देयर बाय, जिसमें MSME का जो फुल फॉर्म जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो ऐसे डिपार्टमेंट है, सेंट्रल मिनिस्ट्री है, जिसमें एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, जो भी एग्रीकल्चर हो, जो भी हो, लोन ग्रांट करता है, स्कीम प्रोवाइड करता है, जिसमें SIDBI will open 24 new branches and service coverage will expand to 168 out of 242 major clusters. Credit support to MSMEs during stress period. I will just tell the important points, not all points. Herein, a 20 lakhs limit for a Mudra loan has also been prescribed. Mudra loan
जिसको पहले 10 लाख हुआ करता था, उसके एनहेंस करके 20 lakhs कर दिया है। फर्दर जिसमें एमएसएमई के तहत हम रेंटल हाउसिंग विद डॉर्मेटरी टाइप्स accommodation, industrial workers in PPP mode with BGP support for facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipments without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee schemes will be introduced. Establishment of 50 multi-product food irridations unit and 100 food quality and food testing labs in MSME sectors. मैं जो बात कर रहा हूँ कि नेशनल बजट का, यूनियन बजट को लेके बात कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर भाजपा की शान, कुशल किसान। We are not only focusing to industrial sector, we are also giving emphasis to the agriculturalist, जो हमारे किसान भाइयों के लिए भी हम बहुत अच्छा लाया है फाइनेंशियली। Financial support to set up a network of nucleus breeding centers for shrimp brood stock and shrimp farming, processing and exports to be facilitated through NABARD. Release of new 100 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticulture crops and development of large-scale cluster for vegetable production. Polavaram irrigation projects will ensure food security of a nation. Development in the Kopati area in Visakhapatnam Chennai Industrial Corridor and overall area in Hyderabad Bangalore Industrial Corridor. Establishment of 10,000 need-based bioresource centers. आजकल जो bioresource को बहुत बायोप्रोडक्ट को इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, इसीलिए bioresource 10,000 need-based bioresource center भी establish किया जाएंगे. The government will facilitate the implementation of a digital public infrastructures in agriculture for coverage of farmer and their lands in 3 years. Infrastructures, नया भारत का नया infrastructure. Fourth phase of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, 25 rural habitation will all weather roads, meaning thereby जिसमें हम अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 फेज हो रहा है और हम 4th फेज भी शुरू कर रहा है, जिसमें 25,000 रूरल हैबिटेशंस विल बी प्रोवाइडेड, जिसमें अभी ग्राम PMGSY हम जस्ट पोपडाल वी नो इट इज ए PMGSY रोड, जिसमें अरुणाचल में भी हर कोने कोने में PMGSY रोड पहुंचाया जा रहा है. Plug and play industrial parks, development of plug and play industrial park in 100 cities in partnership with state and private sectors. To build Andhra Pradesh capital Amravati, special financial support through multilateral developmental agencies, rupees 15,000 crore will be arranged. 26,000 crore packages for road projects and power plants worth rupees 21,000 crore has been announced for the Bihar. 12 industrial parks and the National Industrial Corridor Development Program. Purvodaya plan, economic opportunities for endowments, rich state in Eastern India. Provisions of 1.5 lakh crore for long-term interest-free loans to support the state in resource allocations. This is the rule regarding rural development, जन जन की उन्नति, ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति. 4th phase of Pradhan Mantri that I have already stated, pre-ration will be continuous for 5 years. जो हम रोशन फ्री रोशन बातें पिछले साल से 5 years से जब बहुत साल से हम बांट के आए, भाजपा गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुआ है, तो ये हम कंटिन्यू करने के लिए डिसीजन लिया है फॉर अनदर 5 years, जिसमें 35 kg ईच मेंबर फैमिलीज को हम बांटते हैं.
More than 100 branches of India Post Payment Bank will be set up in the Northeast region. This is very important. PM Awas Yojana Rural 2.0, 2 crore additional houses to be provided to the poor families. PM Awas Yojana के तहत हम गरीबों को के लिए जो घर बनाता है वो भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, जिसमें 2.66 lakhs crore for rural development, 5 crore travel to be benefited across 63 villages. ये कार्यक्रम से हम 63,000 villages को हम एडवांटेज मिलेंगे. Building cities of future, स्मार्ट शहर, कुशल नागरिक. Promote water supply, sewage treatment and solid waste management project and services for 100 large cities through bankable projects. Encouraging states to lower stamp duties for properties purchased by women. ये जो हमारे नागरिक का ये जो वोमेन विंग, वोमेन महिलाओं लोगों के लिए, क्योंकि स्टाम्प जो भी प्रॉपर्टी परचेस करता है उसको हम स्टाम्प ड्यूटी यानी कि रेवेन्यू जो हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, यानी स्टाम्प पैसा कम लेंगे स्टाम्प ड्यूटी में. फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिव डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सिटीज known as brownfield development has been introduced. Transit-oriented development plan for 14 large cities with population of above 30 lakhs. जिसमें अभी जो मैं बताया गया कि 1 crore आवास to urban poor and middle class families will be provided under PM आवास योजना, जिसमें 1 crore हम घर मुहैया कराएंगे. 100 weekly hut to be developed in selected cities, जिसमें हम जिसमें सेलेक्टेड सिटीज होगा जिसमें वीकली हम 100 हट्स बनाएंगे. टूरिज्म एंड हेरिटेज, पर्यटन से परंपरा. डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर्स एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर्स ऑन काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर्स. Comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken, which should religious significance for Hindus, Buddhists, and Jains. Assistance to development of Odisha's scenic beauty temples, monument, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscape, and pristine beaches. Next generation reforms, सबका साथ सबका विकास. Introduced of Jan Biswas Bill 2.0, a steps toward improving ease of doing business. यहाँ बोला गया है कि एक बिल लाएंगे जन विश्वास के लिए for ease of doing business. FDI and overseas investment simplified to facilitate and promote opportunities for using Indian rupees as currency for overseas investment. Introductions of NPS Vatsalaya for minor to allow parents and guardians to contributions on behalf of the children. Improvement of data governance, collections, processing and management of data statistics, जिसमें 1 lakh crore provisions for benefiting women and girls, जिसमें 1 lakh crore women and girls will be benefited. New pension schemes, a solution that will address the relevant issues, protect the common citizen. Land record in urban areas will be digitalized with GIS mapping. जो भी लैंड रिलेटेड इशू को डिजिटलाइज करने के लिए डिसीजन लिया गया है, और जो भी कैडेस्ट्रल मैप, जहाँ भी कैडेस्ट्रल मैप बनाएंगे उसको भी डिजिटलाइज कराएंगे. ग्रीन एनर्जी, ग्रीन सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा से देश की रक्षा. Energy transitions, policy document on energy transitions, pathway to balance the imperatives of employment,
growth and environmental sustainability. Research and development of small and modular nuclear reactions. Government to partner with the private sectors for R&D of Bharat small modular reactors, naval technologies for clear energy, and set up Bharat small reactors. Innovation, research and development, नवासर अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन. Operationalization of अनुसंधान national research fund for basic research and prototype development. Custom duties on 25 critical miners for sectors like nuclear energy, space, defense, etc. are made fully exempt. और टैक्सेस, कस्टमर एंड ड्यूटीज, जैसे टैक्सेस में कौन कौन सा ये में ये लगाया है उसको भी मैं बतला दूं. टैक्स में सूट का उपहार, देश का उधार. Buoyed by GST's success, the tax structures will be simplified and rationalized to expand GST to remaining sector, जिसमें टैक्स ड्यूटी को भी हम सिंप्लीफाइड किया गया है. सिंपल टैक्स रिजाइम फॉर फॉरेन शिपिंग कंपनीज टू बूस्ट क्रूज टूरिज्म, जिसमें कैंसर ड्रग फुल एग्जम्पलेट फ्रॉम द कस्टमरी ड्यूटी, जिसमें हम कैंसर के लिए ड्रग्स जो यूज करता है उसको भी टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, जिसमें ट्रास्टुजम्बम, ट्रैक्सटोसेन, ये जो केमिकल नेम्स हैं ये सब को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है. चेंज इन द बेसिक कस्टम ड्यूटी, BSD ऑन एक्सरे ट्यूब्स एंड फ्लैट फैनल्स डिटेक्टर्स फॉर मेडिकल एक्सरे मशीन्स अंडर बेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, जिसमें भी इसमें सिंप्लीफाइड किया गया है. कस्टम ड्यूटीज ऑन गोल्ड एंड सिल्वर रिड्यूस टू 60% एंड ऑन प्लेटिनियम टू 6.4%. BCD on mobile phone, mobile printed circuit board assembly and mobile charges reduced. Employment and investment, abolishment of angel tax for all classes of investors to bolster the startup ecosystem. Simple tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruise to promote cruise tourism in India. Safe harbor rates for foreign mining companies selling raw diamonds in the country. Corporate tax rate of foreign companies was reduced from 40 to 35%. The relief to the middle class, जिसको मैं आपको बताऊं कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज का जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा नील अप टू 3%, और 5% 3 to 7 lakhs में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसका 5% लगाया गया है. 7 to 10 lakhs को 10% लगाया गया है. 10 to 12 lakhs 15%, 20% जिसमें 12 to 15 lakhs होगा, 15 lakhs प्लस और एबव 30% टैक्स लगाया जा रहा है. अप टू 17,500 सेविंग इन द टैक्सेस, जिसमें करके हम इतना सेव कर रहे हैं. मैं ये दिस इज इन नटसेल, आई हैव जस्ट हाईलाइटेड द स्टेट नेशनल बजट 2024-25. That effort, I would also like to throw light on the state budget, which has been brought recently by our finance minister, that I would like to highlight. The state budget allocation for 2024-25 has been 47,823 crore in the BE 2024-25, and this year the government of Arunachal Pradesh has declared the year of the youth,
Year of the Youth, and I would like to throw some lights about the policy program which has been brought by way of budget, जिसमें हम बजट का अंदर में 100 days एजेंडा रखा गया है इन एवरी डिपार्टमेंट स्टार्टेड फ्रॉम हेल्थ टू एजुकेशन, जिसमें इस डिपार्टमेंट को हम 100 days का एजेंडा जिसमें कंप्लीट करने का रखा है. If I go and tell all these agendas, it will take so much time. So I would not like to tell. I am not going to tell it. However, I am telling it that 100 days का एजेंडा है जिसमें पूरा डिपार्टमेंट में फिक्स करके रखा है. एंड ईयर ऑफ द यूथ में आपको पहले बोला है कि एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ हो और स्पोर्ट्स हो, सब में रखा गया है. और हम यूथ पॉलिसी भी बना रहे हैं इस बार, कैसे यूथ को कैसे आगे लेके जाना है. ये इट डजंट मीन दैट हम ये बार ईयर ऑफ द यूथ बोला है कि इस बार ही यूथ का प्रोग्राम होगा, ऐसे नहीं है. ये इसीलिए हमारा गवर्नमेंट ईयर ऑफ द यूथ बोला गया है कि हमारा यूथ सतर्क रहेगा, हमारा यूथ कोई काम में बिजी रह के आगे जाता है तो कल को हमारा स्टेट भी बहुत अच्छा होगा, ग्रोथ होगा. तो इसीलिए ये सोच के हम ईयर ऑफ द यूथ बोला है. बोलते हुए मैं थोड़ा कुछ आप सबको बताऊं कि हमारा यूथ का टैलेंट हंट भी एक प्रोग्राम रखा है. आपको पता है जिसमें हम वेरियस कैलेंडर इवेंट्स में रखा है. अरुणाचल मिस अरुणाचल है, अरुणाचल आइडल और सिंगिंग टैलेंट, ये सब 5 हम कैलेंडर इवेंट्स में रखा है हम यूथ को पार्टिसिपेट कराने के. और यूथ एंड स्पोर्ट्स जिसमें हम ओलंपिक के लिए हम स्पेशल केयर ले रहे हैं क्योंकि इस बार कमिंग 2028 एंड 32 के लिए हम स्पेशल फंड भी रखा है कि दोज हु आर रियली टैलेंट उसको हम प्रमोट करेंगे. ओलंपिक में जो भी एक मेडल भी लेके आए, इसीलिए हम ये ओलंपिक के 28 एंड 32 के लिए हम प्लान कर रहे हैं. एंड और एजुकेशन में आपको पता है हम जो IIT में जो क्रैक करता है तो उसको हम 100% फ्री पढ़ाने का ये गवर्नमेंट हम रखा है बजट में. और जिसमें कमर्शियल पायलट में जो पड़ेगा उसको 75%, मर्चेंट नेवी के लिए जो कोर्स मिलेगा उसको भी 75% रखा है. और जिसमें वर्ल्ड वाइड 150 डिस्टिंक्ट यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें अगर जो क्रैक कर पाता है उसको भी हम आपको फ्री 75% वर्ल्ड वाइड में कहीं भी हो आपको एकोमोडेशन ट्यूशन उसको करने का हमारा प्राविधान रखा है बजट में. एंड दैट एफर्ट यूथ के लिए जो अग्निवीर प्रोग्राम भी रखा है, जिसमें अग्निवीर प्रोग्राम में ये है कि इससे आपको पैरामिलिट्री हो और मिलिट्री आपको आर्म फोर्स में हो, जो भी आप जॉब करना चाहें, लेकिन आप कैसे पार्टिसिपेट करना है उसको नहीं जानने से उसको हम आर्मी पर्सनल को या पैरामिलिट्री फोर्स को हम 1-2 महीना के लिए ट्रेनिंग करवाएंगे जो यूथ एस्पायरेंट्स यूथ्स को, सो दैट दे कैन टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया. तो आपको पता होगा कि जब आर्मी के साथ ट्रेनिंग करेगा तो कैसे ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग लेना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, उसको पहले से जान के रखेगा तो आप दूसरा रेस्ट ऑफ द स्टेट को भी आप कम्पीट कर सकता है. इसीलिए ये अग्निवीर भी रखा गया है. एंड ये जो नारी शक्ति के लिए भी वो सिर्फ यूथ के लिए नहीं, नारी को भी हम लोग प्रायोरिटाइज कर रहा है कि वोमेन विंग को, जैसे दैट आई वुड लाइक टू टेल दैट इन डायरेक्शंस skill train over 110,000 women in 13,000 self-help groups in the state, which has resulted in more than
3,04,000 SHG self-help group in securing almost 75 crore as bank credit, जिसमें वोमेन को भी हम लोग प्रायोरिटाइज कर रहा है। आप देखिए आजकल विलेज में, पहले हमारा काउंट्री साइड में यानी कि विलेज साइड में, बस्ती में औरत लोग सिर्फ खाना बनाने में, कपड़ा धोने में, घर साफ सुथरा में रहता था। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्फासाइज ये गवर्नमेंट देने का वजह से दे आर ऑल बिजी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें भी हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और सचेते के जरिए अब आर्टिकल 275(1) में भी हम पहले ऐसा करता था कि जो भी सेंट्रल से फंड आता है उसको हम MLA लेड से मैचिंग शेयर करता था। अभी ये गवर्नमेंट जितना भी फंड आएगा उसको हम ईयर मार्क करके रखा है कि स्टेट बजट में भी इसको एलोकेशन दिया गया है। ये एक जस्ट नटसेल में स्टेट बजट को भी हम जस्ट बतलाया गया है कि बट माई मेन मोटो ऑफ कन्वीनिंग दिस meeting with you and conference is just to highlight the union budget. So I have highlighted whatever I know, and I have gone through and the gist of the 2024-25 union budget. Thank you. So regarding the health sector, मेरा एक सवाल था, आप नारी शक्ति को आप लोग प्रमोट करेंगे बोला, हेल्थ सेक्टर को लेके भी अकॉर्डिंग टू द न्यूज़लेटर आई गॉट बहुत सारे स्टेप्स लेंगे। आई वांट टू आस्क टू कॉम्बैट ड्रग्स आल्सो, आप जो हमारे रिहैब सेंटर है गवर्नमेंट का इतना है, हमारे अरुणाचल में 3 रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो गवर्नमेंट रन करता है, कुछ 6 to 7 NGO बेस्ड जो गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, इतना है। तो इन सभी में से एक भी फीमेल वाला ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर है जिसका वजह से जो फीमेल अफेक्टेड है ड्रग्स में, दे हैव टू ईदर टेक घर में ही वो लोग करना पड़े या तो फिर दूसरे स्टेट पे जाना पड़ता है। आपके गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स लेने जो फीमेल रिहैब सेंटर्स? नहीं, यू राइटली पॉइंटेड आउट, ये तो सही बात है कि आज तक फीमेल के लिए सेपरेट नहीं बने हैं, लेकिन वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डेट इट्स कम्स अंडर द Sajeta department that I am also Mantri of Minister of the department. That is really, this is a serious जो हमारा स्टेट में जो ड्रग मैनेज जो चल रहा है, ये इसमें वोमेन भी बहुत इन्वॉल्व है। उसके लिए भले ही इसको पर्टिकुलरली मेंशन नहीं करने से भी वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डेट एस्पेक्ट। सर, जो प्राइवेट रिहैब सेंटर्स है जो रेगुलेशंस ले डाउन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के पास भी लिस्ट नहीं है प्राइवेट रिहैब सेंटर्स कितना फंक्शन करता है, कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी नहीं है। तो जैसे जैसे ड्रग मैनेज बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत सारे प्राइवेट रिहैब सेंटर्स भी खुल रहे हैं, तो कुछ प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं है, वो लोग चेक करना भी नहीं है। तो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा कैसे आप लोग ये सब चीज़ को मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट रिहैब सेंटर्स? Yes, this is a very serious issue now. Recent incident at Pasighat, जिसमें एक ड्रग यूजर को इट इज़ एलेज दैट पीट के मराया गया है, पता नहीं कितना तक सही है, बट इट इज़ एलेज। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन जिसमें आलो में भी है, हमारा मादरस विजन चला रहा है, पासीघाट है, नाहरलगुन है, क्योंकि गवर्नमेंट में सफिशिएंट नहीं होने का वजह से ये प्राइवेट रन कर रहा है। तो इसके लिए हम कैसे रन करना चाहिए उसके लिए भी हम लोग मॉडलिटीज तैयार करना चाहिए और हम जरूर उसके ऊपर तैयार करेंगे। सर, अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है, उसी सिलसिले में यूथ एंड स्पोर्ट्स को लेकर सर मैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स को लेकर बात करता हूँ। ग्राउंड जो प्ले ग्राउंड है वो है ही नहीं, चाहे फुटबॉल की बोलो और चाहे आप बास्केटबॉल बोलिए, जो भी जो यूथ लोग पार्टिसिपेट कर सकता है। अब तो अभी रिसेंटली मेरा कोलिग ने भी बोला ड्रग्स मैनेज को लेके, तो ये सब कम करने के लिए जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है। तो क्या आप एक बीइंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर हिसाब से कि ये गवर्नमेंट का अपना स्पोर्ट्स जो गली में जो होता है ना, हर सेक्टर में होना चाहिए था, सेक्टर में
प्ले ग्राउंड होना चाहिए, उसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी जिस हिसाब से फुटसेल वगैरह आ रहा है, जो प्राइवेट स्पोर्ट्स वगैरह बना रहा है, उसमें तो पैसा लगता है। क्या गवर्नमेंट इसका ऊपर कुछ काम करेंगे जिसमें बिना पैसा में हमारे बच्चे खेल सके? वो गली में खेल रहे, तभी जाके वो तो ओलंपिक जाएगा ना सर। No, yes, you have rightly pointed out. मैंने उस दिन भी असेंबली में जिक्र किया और मैंने सीएम से भी डिस्कस किया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिग इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द रिमोट एरियाज हमको चाहिए अभी, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज जैसा वॉलीबॉल ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड एटलीस्ट ईच विलेज में होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने अभी प्लान ये करा। अभी हम बजट जस्ट इस बार तो एज यू नो गवर्नमेंट अभी ये डिसीजन लिया है कि न्यू स्कीम टेकअप नहीं करेगा। ऑल लायबिलिटीज, पेंडिंग लायबिलिटीज को क्लियर करेंगे एंड नेक्स्ट ईयर से हम न्यू बजट प्रिपेयर ला रहे हैं, सैंक्शन कर रहे हैं। फॉर डेट ये बॉटम अप पॉलिसी लाया गया है कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट से रिक्वायर्ड स्कीम प्रोजेक्ट डालेंगे और यहाँ सेंटर में आके और सैंक्शन होगा। तो इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नोज कहाँ ये लगाना है। तो मेरा व्यू ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है स्पोर्ट्स ये के लिए हम एटलीस्ट एक फुटबॉल ग्राउंड एक विलेज में होना चाहिए, वॉलीबॉल होना चाहिए। एंड रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट इन द कैपिटल, एज यू नो सेंटर ऑफ एक्सलेंस यहाँ सिंपू में बना रहा है और जब बन के तैयार हो जाएगा तो यहाँ भी बहुत अच्छा आ रहा है। और हम वी आर ट्राइंग टू लोकेट प्लॉट ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ फुटबॉल ग्राउंड ऑफ एटलीस्ट 35,000 कैपेसिटी का, 25,000 कैपेसिटी का हम ढूंढ रहा है। उसमें लिए पैसा भी ईयरमार्क करके रखा है तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो वो बनने से और जमीन मिलते ही हम उसको बना रहे हैं। और ये जो है आपको इस बार आप तो पता है कि यूपिया में एक हमारा स्टेडियम है 35,000 कैपेसिटी का, संतोष ट्रॉफी रिसेंटली खेला है। तो इसमें हमारा स्पेशली इन द कैपिटल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू लैक ऑफ लैंड अवेलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना रहा है। और मेरा विचार में एज यू नो it's been only 1 month I have been inducted in this assigned the portfolio as a sports minister. As a sports minister I would say that जो बेसिक नेसेसिटी को होना चाहिए, जितना बड़े बस्ती में बना के रखते यूज नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सर मेरा कहना रहेगा सर मुद्रा लोन के ऊपर में, जो मुद्रा लोन देते हैं अभी 10 से 20 लाख का दे रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है कि जो लोन होते हैं, जो मुद्रा लोन जो स्पेशली जो मिडिल क्लास लोगों के लिए होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होते हैं कि लोग पॉलिटिशियन के लोग जो बीवी होते हैं या फिर उनके परिवार लोग होते हैं वही अवेल कर पाते हैं, जो एक्चुअल में जिसको जाना है नहीं मिल पाते हैं। आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये मुद्रा लोन जो है एक्चुअल बेनिफिशियरीज के ही जाना चाहिए? देखिए, इसमें मुद्रा लोन लेने के लिए देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, जो गाइडलाइन को तो फॉलो करके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड गिव व्हाट आई फील, जिसमें वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैंक वाला मिल के कैसे वो लोग डिसाइड करता है वही करेंगे। उसमें तो कोई बड़े नेता या पॉलिटिशियन का ये लोग तो पैसा वाला जनरली नहीं लेना चाहिए, मेरा ओपिनियन यही है। और एक सवाल है, ये जैसे कि एमएसएमई में आपने बोला कि 24 न्यू ब्रांचेस खोलेंगे, अरुणाचल में कितने ब्रांचेस होंगे? That the government of India will decide that क्योंकि I am not the representative of the government, I cannot tell that the central government will decide। अरुणाचल में अभी just budget lay down किया है, तो उसको allocation will be made later on। सर, आपके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में फरवरी 2022 अरुणाचल प्रदेश एलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था, जहाँ पे आप लोग कुछ गिने चुने एलीट्स लोग आप लोग ट्रेन किया अपस्किलिंग के लिए, एंड देन वहाँ पे यहाँ पर ऐसा लिखा था कि एसेंशियल टूल्स प्रोवाइड करेंगे, ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन। तो हम लोग म्यूनिसिपल ने रिपोर्ट बनाया था, जो आप लोगों ने एथलीट लोग आप लोगों ने नैरो डाउन करके जिन लोगों को चूज किया था,
वहाँ पर थोड़ा सिर्फ मिला था जस्ट फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन ये जो अरुणाचल प्रदेश डेवलपमेंट प्रोग्राम था इट वाज गॉन एंड देन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट जो आदमी लोग को जो एथलीट्स है वो लोग खुद से अपना इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना खरीदा 20,000 इक्विपमेंट्स रुपीस का अभी तक वो लोग रिइंबर्समेंट भी नहीं हुआ सर। अगर ऐसा अरुणाचल प्रदेश डेवलपमेंट प्रोमिसिंग वाला जो हमारा एथलीट्स लोग के लिए लॉन्च किया था अरुणाचल गवर्नमेंट ने और अभी आप नया बजट सेशन में लेके आए हैं अरुणाचल ओलंपिक मिशन ओलंपिक तक आप लोग एम कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट able to fulfill February 2020 का then how are you planning to fulfill this Arunachal Pradesh Olympic Commission? No, you see, this time we have kept 100 crores and above for youths, and amount not yet it has been demarcated and अभी जो उसको properly just budget state में state legislative में lead किया है तो अभी डिपार्टमेंट में अभी उसको बांटना जरूरी है। अभी नहीं बांटा है तो उसमें बांटने का बाद कैसे उसको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है उसको I will decide it later on regarding that elite matter because I think that time I was not a minister of sports and youth but from time I will specifically identify who are the real players and who is really keen to learn and to do best in their capacity. इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ में आपको पता है कि the sports association in Arunachal is a mushrooming up and उसको सब आके जो भी पता नहीं इसको आइडेंटिफाई करके रखा है कि नहीं कर रखा है as and when I took over the charge of Minister of Sports and Youth I have seen there are mushrooming of associations games and sports associations we need to ascertain who are really keen to do from their दिल से जो करने दिल है उसी को हम आइडेंटिफाई करेंगे नॉट दैट कि पैसा उसा कमाने का जो करने का उसको तो आई विल नॉट एनकरेज दैट इज द रीजन जो डिजर्विंग और नहीं मिल रहा है। सर आप प्रॉपर रेगुलेशन दिखाएंगे ताकि जो कोचेस भी नहीं आया बोला आप लोग स्किलिंग कोचेस प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा बोला नहीं कुछ भी नहीं आया सर। You see, the state of Arunachal Pradesh is a developing state, coming up state. तो इसमें सब necessity को तो fulfill तो नहीं कर सकता उसको that I have to admit it. But we are also trying. आप तो पता है हमारा most dynamic chief minister is very interested in games and sports. He is trying from his level तो fulfill करने के लिए कोशिश करता है लेकिन एक minimum जो अमाउंट रिक्वायर करता है कि जो अच्छा स्पोर्ट्स होने के लिए तो उसको हम आई हैव टू एडमिट हम हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप जो पहले एक पूछा है कि जो इस कैश इंसेंटिव्स को भी कोई आप बोला है देखे नहीं मिल रहा है ये तो इसको हम ये कोशिश कर रहा है कि जो भी इवेंट्स है कैलेंडर इवेंट्स वाला को ईयरमार्क करता है लेकिन जो आगे जाएगा ये करे उसके लिए ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हमारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे के नहीं रखने का वजह से ये थोड़ा तकलीफ तो हो रहा है दैट आई हैव टू एडमिट इट। माय लास्ट क्वेश्चन इज आपने कहा था कि स्टेट बजट में लोग एवरी डिपार्टमेंट में 100 डेज एजेंडा बोलकर आप लोग रिलीज करेंगे सर ये क्या है आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता ये जो मैं आपको बताऊं कि 100 डेज एजेंडा जो है हम ईस्ट डिपार्टमेंट को हम टारगेट सेट करके रखा है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आप ये डिपार्टमेंट ये करना है वो करना है तो मैं एक जस्ट एग्जांपल बताऊं कि से सपोज मैं आपको बताऊं कि ये वी आर वर्किंग टू रिवाइज द एग्जिस्टिंग इटानगर नारलुइन ट्विन city master plan to enable the capital city to become a future ready and make significant improvement in city life for citizens. ये मीनिंग देयर बाय ये बोल रहे हैं कि आप
ट्विन कैपिटल सिटी को मास्टर प्लान बनाना है अच्छा से, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन में हम लोग कैसे अच्छा से रह सकता है, तो उसको अभी तक मास्टर प्लान नहीं है। तो उसको मास्टर प्लान आप 100 डेज का अंदर में प्लान बना के गवर्नमेंट को ले टर्न करना है। दिस इज एन सेशन, कब से शुरू होगा सर? वही स्टार्ट ही हो गया। आज से स्टार्ट हाँ, होगा सर, 100 के 100। यस, थैंक यू।